السلام علیکم آداب، زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ سے آئے سینکڑوں پناہ گزین، جن میں پورے خاندان ہیں شامل، اس وقت ریاست کیلیفورنیا میں داخل ہونے کے لیے میکسیکو اور امریکہ کے درمیان سرحدی علاقے میں طویل قطار میں ہیں کھڑے۔ ملیشیا میں کورٹ آف اپیل نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی کرپشن کے کیس میں ہائی کورٹ کی جانب سے بریت کو رکھا برقرار۔ بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو کلسٹر بموں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے پر تیار، جلد اس کی منظوری دی جائے گی۔ لیبیا میں محکمہ صحت کے حکام کا بیان، کہا دانیال نامی سمندری طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز، جبکہ 50,000 سے زائد افراد ابھی بھی ہیں لاپتہ۔ ای ڈی نے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور سابق کابینہ وزیر اعظم خان کے ٹھکانوں پر مارا چھاپا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے رامپور، لکھنؤ، سیتاپور، میرٹھ، سہارنپور اور غازی آباد میں مارے چھاپے۔ راجستھان کے بھرت پور میں قومی شاہراہ پر سڑک حادثہ آیا پیش، اس سڑک حادثے میں 11 افراد ہلاک، جبکہ حادثے میں 12 افراد ہیں زخمی۔ افریقہ اور ایشیا اور لاطینی امریکہ سے آئے سینکڑوں پناہ گزین، جس میں پورے خاندان شامل ہیں، اس وقت امریکی ریاست کیلیفورنیا میں داخل ہونے کے لیے میکسیکو اور امریکہ کے درمیان سرحدی علاقوں میں طویل قطار میں کھڑے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کیلیفورنیا کے سان ڈیاگو کے قریب ایسے مناظر رواں سال مئی میں بھی نظر آئے تھے، جب سینکڑوں کی تعداد میں دنیا بھر سے پناہ گزین یہاں اکٹھے ہوئے۔ امدادی کارکنوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں دو ملکوں کی سرحدوں پر لگے بیریئرز کے درمیان علاقوں میں موجود پناہ گزینوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم۔ امدادی کارکنوں نے امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کی طرف سے اجازت کے منتظر پناہ گزینوں کے ساتھ موجود بچوں کو مختلف اشیاء بھی دیے۔ رویٹرز کے تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ امریکی سرحدی فورس کے اہلکار کے ارد گرد قطار میں کھڑے ہیں جب وہ ان کو ہدایت دے رہے ہیں۔ امریکی فرینڈز سروس کمیٹی میں انسانی حقوق کے وکیل جاسو نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کی بڑھتی تعداد جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ہفتے کی منگل بدھ کو شروع ہوئی تھی۔ جاسو نے کہا کہ مئی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ہم پر امید تھے کہ امدادی ایجنسی کے ذریعے ان پناہ گزینوں کو جلد اگلے مرحلے میں داخل کر دیں گے، مگر صورتحال جوں کہ توں اور اب بھی سینکڑوں افراد دو ملکوں کی سرحدوں کے درمیان رکاوٹوں یا بیریکیڈز کے اندر موجود ہیں۔ امریکہ میں کرونا وبا کے دوران ملک میں پناہ گزینوں کی داخلے کو روکنے کے لیے ٹائٹل 42 کے نام سے قواعد عمل میں لائے گئے تھے، جن کے میعاد رواں سال مئی میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے بڑے پیمانے پر افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ سے ہزاروں افراد بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Colombia saw 141 documented migrant deaths in 2022. The remote and dangerous nature of this area and the presence of criminal gangs along the route means that this figure likely does not represent the actual number of lives lost. ملیشیا کورٹ آف اپیل نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی کرپشن کیس میں ہائی کورٹ کی جانب سے بریت کو برقرار رکھا ہے۔ نجیب رزاق کو ون ملیشیا ڈیولپمنٹ بہرات فرنٹ کرپشن کے ایک کیس میں ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق بریت کے باوجود نجیب رزاق جیل میں ہی رہیں گے، کیونکہ ان کو کرپشن کے ایک اور کیس میں 12 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ نجیب رزاق کے وکیل شفیع عبداللہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ عدالت نے برائے اپیل نے بریت کے خلاف پروسیکیوشن کی اپیل کو مسترد کر دیا، کیونکہ پروسیکیوشن نے مقررہ مدت کے دوران اپیل کے حق میں درکار دستاویزات جمع نہیں کرائی۔ مارچ میں ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو کرپشن کے الزام سے بری کر دیا تھا، کیونکہ پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا تھا کہ نجیب رزاق نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 1MD پارلیمان میں پیش کرنے سے پہلے تبدیل کیا تھا تاکہ اس منصوبے میں کرپشن دیا جا سکے۔ شفیع عبداللہ کا کہنا تھا کہ نجیب کی بریت کو مزید کسی کارروائی کے برقرار رکھا گیا ہے۔ ان کے مطابق انہیں نہیں لگتا کہ پروسیکیوٹرز اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ آڈٹ رپورٹ میں رد و بدل نجیب کے خلاف چلنے والے کرپشن کے کئی کیسز میں سے ایک ہے۔ اس وقت وہ 1MDB کے کرپشن کے ایک اور مقدمے میں 12 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جس میں گزشتہ سال سپریم کورٹ نے بھی ان کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ 1MDB فنڈ نجیب رزاق کے 2019 میں وزیر اعظم بننے کے چند مہینے بعد قائم کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اس فنڈ سے 4.5
0.5 अरब डॉलर चुराए गए थे, जो नजीब रज़ाक के साथियों ने कई बैंक अकाउंट्स के जरिए अमेरिका और दूसरे ममालिक को लॉन्ड्रिंग किया था। प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उन पैसों से कई बॉलीवुड फिल्मों की फाइनेंसिंग के अलावा लग्जरी होटल्स, क्रूज शिप और जेवरात खरीदे गए। 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा नजीब के बैंक अकाउंट्स में जमा कराए गए थे। करप्शन के स्कैंडल के सामने आने के बाद जब वो 2018 में नजीब की ज़ेर क़यादत उस हुकूमत की हुक्मरान इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो नजीब रज़ाक और उनकी बीवी रोसमा मंसूर के खिलाफ करप्शन के कई केसेस खुल गए। रोसमा मंसूर को 2022 में शमशी तवानाई के एक मनसूबे में करप्शन के इल्ज़ाम में 10 साल कैद और 2 करोड़ 17 लाख डॉलर जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। रोसमा मंसूर इस वक्त ज़मानत पर रहा है और सज़ा के खिलाफ उनकी अपील अदालत में ज़ेर समाअत है। बाइडन इंतज़ामिया ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों के लिए लेस तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करने पर तैयार है और जल्द इसकी मंजूरी दी जाएगी। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया कि उन मिसाइलों की फराहमी से यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्ज़े इलाकों में उसे भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। हुकाम के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की मंजूरी के बाद इन मिसाइलों की खेप फौरी तौर पर यूक्रेन भेजी जा सकती है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 155 मिलीमीटर धाने की तोपखाने की गोले में क्लस्टर गोले बारूद की कामयाबी के बाद अमरीका यूक्रेन को आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम ATACMS फराहम करने पर गौर कर रहा है। ये 306 किलोमीटर तक प्रवास कर सकता है या फिर क्लस्टर बमों से लैस गाइडेड मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा जो तकरीबन 70 किलोमीटर तक मार सकता है। ये दोनों सिस्टम भी दिया जा सकता है। मामले से वाक़फ़ियत रखने वाले ज़राए के मुताबिक रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ यूक्रेनी मुहिम में पेशरफ्त के आसार ज़ाहिर होने की सूरत में अमरीकी इंतज़ामिया यूक्रेन के फ़ैसले कुन फ़ौजी मदद करने की ख्वाहिशमंद है। चार्ल्स ज़राए ने बताया है कि अटैक सिस्टम ATACMS या मिलिट्री लॉन्च गाइडेड मिसाइल सिस्टम या दोनों फराहम करने का फैसला हतमी नहीं है और हो सकता है कि असलहा देने की ज़रूरत ही पेश न आए। यूक्रेन के पास इस वक्त 155 मिलीमीटर तोपखाने गोले मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादा पहुँच तकरीबन 29 किलोमीटर तक है और ये 48 छोटे बम ले जा सकते हैं। वाज़ह है कि 14 फरवरी 2022 को रूस की यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने कीव को 40 अरब डॉलर की फ़ौजी फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। लीबिया में महकमे सेहत के हुक्काम ने कहा है कि दानियाल नामी समुद्री तूफ़ान के बाद हलाकतों की तादाद 30,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद अभी लापता हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक समुद्री तूफ़ान मिस्र के साहिल से टकरा रहा था, ताहम इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आई है। लीबिया के तिब्बी हुकाम का कहना है कि दरना, शहात, बेज़ा और क़ुर्ब जवार के इलाके आफतज़दा हैं, जिनमें इमदादी कामों के लिए आलमी इदारों से मदद की अपील की जाती है। लीबिया के हिलाल अहमर इदारे ने कहा है कि मुतासिर इलाकों में हलाकतें सैलाबी रेलों में डूबने की वजह से हुई है या मकानात गिरने की वजह से। इदारे ने कहा है कि आफतज़दा इलाकों में कमोबेश 7,000 ख़ानदान महसूर हैं, जिन तक इमदादी इदारे नहीं पहुँच पाए, वहाँ पे इमदाद की कोई सामान नहीं पहुँच पाई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिविल एविएशन के वज़ीर ने कहा है कि उन्होंने दरना का दौरा किया है। मैं दरना से वापस आया हूँ, ये तबाहकुन है, जगह लाशें दिखने को मिल रही है। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें पड़े हैं। समुंदर में, वादियों में और इमारतों के नीचे भी लाशें ही पड़े थे। उन्होंने कहा कि दरना से 1,000 से ज़्यादा लाशें बरामद हुई हैं और ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ जब ये कहता हूँ कि शहर का 25% हिस्सा गायब हो चुका है और बहुत सी इमारतें मुनहदिम हो चुकी है। दूसरी तरफ लीबिया के वजारत दाखिला ने कहा है कि मुल्क में आने वाली आफत इंतहाई हौलनाक और भयानक है, जिसकी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। इस वक्त पूरे के पूरे मोहल्ले और आबादियाँ ज़ेर आब हैं, जबकि कई मोहल्लों की रिहायशियों को इस सैलाब समुंदर में बहा कर ले गया। सैलाबी रेलों की शिद्दत की वजह से आफतज़दा इलाकों में 3 डैम टूट चुके हैं, जबकि मज़कूरा इलाके में 12 मंजिलें इमारतें मुनहदिम हो गई है। दरे असना दानियाल समुद्री तूफ़ान मिस्री साहिलों से टकरा चुका है, जिससे मुर्सी, महरूत और अस्कंदरिया मुतासिर हैं। ज़राए का कहना है कि दानियाल तूफ़ान की वजह से साहिली इलाकों में तेज़ हवा है, धुंध और घने बादल छाए हुए हैं। मिस्री महकमे मौसमियात ने कहा है कि सईद और काहिरा कर्द आलूद तेज़ हवा के जर्द में है, जबकि बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई महकमे मईशत व सियाहत ने कहा है कि रवा साल जनवरी से जुलाई तक 9.83 मिलियन गैर मुल्की सयाह दुबई आए, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान 21% ज़्यादा सयाह आए हैं।
अल-इमारात अल-यौम के मुताबिक 2022 के दौरान जनवरी से जुलाई तक 8.01 मिलियन सयाह आए थे। महकमे मैशियत व सयाहत का कहना है कि इस साल जनवरी से जुलाई के दौरान सबसे ज़्यादा सयाह इंडिया से आए हैं। इनकी तादाद 1.04 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। रूस से 6,73,000, सऊदी अरब से 6,65,000 और बरतानिया से 6,37,000 सयाहों ने दुबई का रुख किया। 2023 के माह जुलाई के आखिर में दुबई के होटलों के कमरों की तादाद 1,48,700 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल जुलाई के आखिर में होटलों की तादाद 774 और उनके कमरों की तादाद 1,41,000 थी। जनवरी से जुलाई तक तमाम रिहायशी मराकज़ में होटलों की औसत मसरूफियत 76% रही, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 72% थी। सऊदी खातून घुड़सवार और ट्रेनर नूरा अल-जबर ने शहरी ज़िंदगी को खैराबाद कहकर सहराओं में डेरा डाल दिए हैं। अल-खलीजिया चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नूरा अल-जबर ने बताया कि उनकी रहन सहन का अंदाज़ बदल गया है। वो सहरा में सुबह से शाम तक घोरों के दरमियान रहती हैं और कहवे पर ज़िंदगी गुजारती हैं। नूरा अल-जबर का कहना था कि वो शहरी ज़िंदगी और उसकी आसाइशों को खैराबाद कह चुकी हैं। अब उनकी दिलचस्पी का महसूल सहरा और घोड़े हैं। अपना तमाम वक्त घोड़ों के साथ गुजारती हूँ। सऊदी खातून घुड़सवार ने मज़ीद कहा कि सहरा में मुझे आराम व सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून हासिल होता है। यहाँ की पुरसुकून ज़िंदगी अच्छी लगती है। मेरी शख्सियत बदल गई है। घोड़ों के साथ रहकर नई चीज़ें सीख रही हूँ। ख्वाहिश है कि और भी लोग मेरे जैसा तजुर्बा करें और शहर की ज़िंदगी को तर्क करके सहरा में डेरा डालें। नूरा अल-जबर का कहना था कि मौसम गर्मा में घोड़ों से काम लेने के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब ज़रूरी है। घोड़ों की इस हवाले से ट्रेनिंग की जाती है और उन्हें नए माहौल को अपनाने की आदत डाली जाती है। नूरा अल-जबर ने कहा कि वो सहरा में रहकर मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं, अपनी तरबियत खुद कर रही हैं। कोशिश होती है कि कुछ नया सीखा जाए। यहाँ मैं ये जानने की भी कोशिश करती हूँ कि क़दीम ज़माने में अरब सहरा में किस तरह रहा करते थे। उन्होंने बताया कि हर रोज़ असर के बाद मेरे पास ट्रेनर लड़कियाँ आती हैं। हम सऊदी अरब के मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए सहरा में निकल जाते हैं। सल्तनत ओमान के फरमानरवा हसीम बिन तारिक ने मंगल को मस्कत के क़स्रुल अलबरका में ख़ुसूसी दौरे पर आने वाले सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के जानिब से ओमान के फरमानरवा को खैर सगाली का पैगाम दिया। मुलाकात में दोस्ताना बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर सऊदी नेशनल गार्ड के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और वज़ीर सक़ाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान भी मौजूद थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुध को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक़ काबीना वज़ीर आज़म खान के ठिकाने पर छापा मारा। रिपोर्ट के मुताबिक ये छापा मारी अल-जौहर ट्रस्ट के हवाले से की जा रही है। महकमा इनकम टैक्स ने रामपुर, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, सहारनपुर और गाज़ियाबाद में छापे मारे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी लीडर आज़म खान छापे के वक्त अपने रामपुर में वाक़ रिहाइशगाह पर मौजूद थे। अब तक की मालूमात के मुताबिक आज़म खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है। ताहम अफसरान की जानिब से अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से आज़म खान लगातार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज़म खान ने रामपुर में मौलाना अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम की थी, जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट चलाता है। आज़म खान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जबकि उनकी अहलिया डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा उसकी सेक्रेटरी हैं। आज़म खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काफ़ी अराज़ी हासिल की थी, जिसको लेकर शुरू से ही तनाज़ा चल रहा था। आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन अब हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले ली है। 173 एकड़ अराज़ी से बेदखली की कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भरतपुर में कौमी शाहिरा पर ट्रक और बस में तसादुम हुआ। इस ट्रक हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि हादसे में 12 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। बस राजस्थान से पुष्कर से उत्तर प्रदेश के वरुणा बन जा रही थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस एक पुल पर ख़राब हो गई। हादसे में बच जाने वाले एक शख्स का कहना है कि बस ड्राइवर और कुछ मुसाफिर बस के पीछे खड़े थे। अचानक तेज़ रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। बस के बाहर खड़े लोग हलाक या शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। अफ्रीका, एशिया और लातिनी अमेरिका से आए सैकड़ों पनाहगज़ीन, जिनमें पूरे ख़ानदान हैं शामिल, इस वक्त रियासत कैलिफोर्निया में दाखिल होने के लिए मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान सरहदी इलाके में तवील कतार में हैं खड़े। मलेशिया में कोर्ट ऑफ अपील ने साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की करप्शन के केस में हाईकोर्ट की जानिब से बर्रियत को रखा बरकरार।
بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو کلسٹر بموں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے پر تیار، جلد اس کی منظوری دی جائے گی۔ لیبیا میں محکمہ صحت کے حکام کا بیان، کہا دانیال نامی سمندری طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز، جبکہ 50,000 سے زائد افراد ابھی بھی ہیں لاپتہ۔ ای ڈی نے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور سابق کابینہ وزیر اعظم خان کے ٹھکانوں پر مارا چھاپا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے رامپور، لکھنؤ، سیتاپور، میرٹھ، سہارنپور اور غازی آباد میں مارے چھاپے۔ راجستھان کے بھرت پور میں قومی شاہراہ پر سڑک حادثہ آیا پیش، اس سڑک حادثے میں 11 افراد ہلاک، جبکہ حادثے میں 12 افراد ہیں زخمی۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا، مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات، اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتہ چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage, no making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.